this is our third period here in this chapter, class 6th, latitude and longitude. So our new topic of today is longitude. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको लैटिट्यूड कैसा होता है, लॉन्गिट्यूड कैसा होता है बताया था, डायरेक्शंस बताए थे. ओके, फिर इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताया था, हीट जोन ऑफ अर्थ के बारे में बताया था, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के बारे में बताया था. ओके, सो चिल्ड्रन बुक रीडिंग करना ज़रूरी है, बुक रीडिंग किया करो. क्लियर? और जब भी मैं कोई होमवर्क देती हूँ तो प्लीज़ अपना नाम लिख कर भेजा करो, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स मेरे पास सेव नहीं है. ओके, विदाउट नेम मैं आपका डायरी में नोट कर ही नहीं सकती. और मान लो अगर आपका कोई नाम बचा भी है, बच जाता है, लास्ट में आपका नाम नहीं आता है, तो मैं आपका नाम बाद में टिक मार्क कर देती हूँ. क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स सी longitude. Open at page 117. See the para children and start reading. The longitude of a place is the angular distance of that place east or west of the prime meridian. It is also measured in degree. See the diagram children in the next page. It is given and page 118. See the diagram. It is given here on your book. These are the longitudes. Okay. So it is also measured in degree. हर lines को degree में किया गया है. See the diagram children. The angle of measurement is formed at the center of the earth. Angle of measurement. See that? See this. See, this is our earth. Okay, and this is longitude. Okay, longitudes. So many longitudes are there, children. Like this, okay, and each line measure in degree. Suppose this is 0 degree, okay, this is 10 degree like that, this is 20 degree like that, this is 30 degree. That means each line represent as a in degree form. Clear? Again I read this line children. It is also measured in degree. The angle of measurement is formed at the center of the earth. Turn the page. In total, there are 360 lines of longitude. How many lines? How many total lines in longitude? 360. Clear children? 360 degree. Now, the most important line of longitude is prime meridian. It is considered as the starting point and therefore it is the 0 degree longitude. Suppose this line is 0 degree. It is very important line and this line is known as prime meridian. This line is known as prime meridian. And where it is passed from? It is passed through ग्रीनविच. ग्रीनविच एक प्लेस है, ये 0 डिग्री वहीं से पास होती है एंड इट इज इन लंदन. ओके, वेर इट इज इन लंदन. नाउ अगेन आई रिपीट द लाइन. सेकेंड लाइन, सी द सेकेंड लाइन, पेज 118. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज द प्राइम मेरिडियन. इट इज कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट. यस, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट and it is 0 degree, okay, and therefore it is the 0 degree longitude and it is 0 degree longitude. See, the vertical lines are there. Longitude, 0 degree longitude. It is passed through the British Royal Observatory at Greenwich. Greenwich से पास होती है. Clear? Near London. Opposite to this meridian, it is the 180 degree longitude. जस्ट इसके पीछे अर्थ इज राउंड इन शेप. जस्ट इसके पीछे क्या बनता है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. जस्ट इसके पीछे कौन सी डिग्री बनती है चिल्ड्रन? 180 डिग्री. दैट मीन्स 180 डिग्री दिस साइड एंड 180 डिग्री दिस साइड. तो टोटल इज 360 डिग्री. ओके, 180 डिग्री longitude. Together these line divided the earth into 2 equal halves. Halves means part. Okay, ये लाइन है, इसके पीछे भी एक और अनदर लाइन होगी और उसकी डिग्री क्या होगी चिल्ड्रन? 180 डिग्री. ओके, तो ये दोनों लाइन क्या करती है? अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है. अर्थ को 2
पार्ट्स में डिवाइड करती है. इट डिवाइडेड अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स टू इक्वल halves. Clear children? Let's move further. So the eastern hemisphere and the western hemisphere. Eastern hemisphere this side and western hemisphere this side. Clear? There are 180 longitudes to the east of the prime meridian and are denoted by the letter E. See this, children. This is north side and this is south side. Here east side and here is west side. So this area is eastern hemisphere, is known as eastern hemisphere. This area is known as eastern hemisphere and this area is known as western hemisphere. What is known as western hemisphere? Clear children? So here eastern hemisphere denoted by E and western hemisphere denoted by W. Clear? The 180 degree east and the 180 degree west meridian are on the same line. Therefore, we do not write E or W with this longitude. The lines of longitude from the semicircle which converge at the pole. So, E और W हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते. ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कौन से डायरेक्शन को देते हैं, कौन से पोल को देते हैं चिल्ड्रन? दिस नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. ओके, नॉर्थ और साउथ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. क्लियर? नाउ लोकेटिंग प्लेस. It is also very important children. Locating place. So let's see what is given here in this topic, locating place. So start reading this point, this para, this topic. In our daily lives, we use address of places to refer to the exact location of a place. Address हम लेते हैं ना, अरे तुम कहाँ रहते हो, मेरा दोस्त है ये एड्रेस पर रहता, like that, है ना. However, geographer use the grid system to locate exact position of the place on earth. अब ग्राइड पोजीशन, ग्राइड क्या है चिल्ड्रन? मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताया था, जब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एक मिलकर एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स को क्या बोला गया है? ग्रिड बोला गया है ना. तो ग्रिड को यूज़ करके यहाँ पर जोग्राफर ने लोकेशन ऑफ अ प्लेस को सेट किया है. कैसे हम पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन्स कहाँ रहते हैं. क्लियर? सी अगेन आई रीड द लाइन. हाउएवर जोग्राफर यूजेस the grid system to locate exact position of the place on earth. The grid system functions on the basis of the lines of latitudes and longitude. See, latitudes and longitudes. Okay. For example, in the figure given below, see the figure which is given on your book also, and here I draw on the blackboard also. So what is given? For example, in the figure given below, horizontal line represent southern altitude. See, horizontal line, that means this line 1, 2 and 3 line represent what? It is represent southern latitude. It represent S, southern latitude. Clear children? जो ये नीचे की लाइन दिख रही है, ये किसको डिनोट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? Southern latitude को. So let's move further. What is given the next? The vertical line represent western longitude, south and west. See, अब जो horizontal vertical line है, it represent western longitude. Long है ना, longitude. Okay. This line represent southern latitude and this line represent western longitude. Clear children? ये लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ लेकर, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है चिल्ड्रन? वेस्ट को. ओके, सी while the western longitude and small circle represent the place whose exact location we need to find using the grid system. अब ग्रिड सिस्टम के हिसाब से लोकेशन ऑफ अ प्लेस कैसे पता लगाएंगे? क्लियर?
So now if we were to tell the location of a point A, see this is point A children, clear, this is point A, we would to say it is located on the 1 degree latitude, ये 1 है, ओके 1 डिग्री लैटिट्यूड ले लिया, 1 डिग्री लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड बोला गया ना, 1 ये लिया, लैटिट्यूड ये ले लिया, क्योंकि 1 लाइन पर इसका प्लेस है, क्लियर, देन एंड b डिग्री w लॉन्गिट्यूड, सी b डिग्री लिया, w किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ट, ओके, w लॉन्गिट्यूड, अगेन आई रिपीट 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड b डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, क्लियर, सी दिस अगेन चिल्ड्रन, this line represent लैटिट्यूड, लाइन लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लॉन्गिट्यूड को, ये जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड को, क्लियर। अब ए को हम ये जो ग्रिड बना है बॉक्स, इसका हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम क्या करेंगे 1 डिग्री लिया, साउथ, हमने साउथ डायरेक्शन लिया था ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको साउथ से रिप्रेजेंट किया था, 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आया है तो लैटिट्यूड लिखेंगे, और कैसे लिख सकते हैं, डी लिया, b डिग्री क्या, साउथ ईस्ट नॉर्थ क्या, वेस्ट, ओके, b डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, क्लियर हो गया। अब आप बताओ इसको कैसे रिकमेंड करोगे, बुक में तो एक ही एग्जांपल दिया है, चलो बी वाली एक्टिविटी करते हैं, क्लियर, लेट्स सी, बी वाली एक्टिविटी करते हैं, बी, अब बी क्या है, किस लाइन पर है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे चिल्ड्रन, ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 डिग्री लिख दिया सीधा, तुमने लिखा 2 डिग्री, अब ये जो कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 डिग्री साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, लॉन्गिट्यूड की लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड को कर रहा है, ठीक है, लैटिट्यूड आ गया, और अदर वे हम क्या लिखेंगे, अब ये किस लाइन पर है, डी, तो डी डिग्री वेस्ट लिया है ना, एक साउथ लिया है और दूसरा वेस्ट लिया है, इसके लिए साउथ है और इसके लिए वेस्ट है, ओके, तो डी डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड, क्लियर चला, सेकेंड समझ में आया कैसे किया। अब करते हैं थर्ड, क्लियर, अब क्या करते हैं, थर्ड में जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे लिखेंगे, ओके, सी द थर्ड वन का हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे, 1 लिखा है तो 1 को लगा दो डिग्री, ओके, 1 डिग्री क्या, साउथ डायरेक्शन लिखो, साउथ वेस्ट व्हाट, तो साउथ, 1 डिग्री साउथ, ओके, और सॉरी 1 डिग्री साउथ हुआ, लैटिट्यूड की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ओके, और अदर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सी किस अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा, ई, तो ई डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, अंडरस्टूड चिल्ड्रन, कैसे किया मैंने, इफ यू नॉट अंडरस्टूड अगेन सी माय वीडियो, ओके, अगेन सी द नेक्स्ट, द लास्ट वन वाला भी हम कर लेते हैं, क्लियर, सी द लास्ट वन, डी, लास्ट पर हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, सो 3 डिग्री साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 डिग्री साउथ, ओके, लैटिट्यूड, और किस फॉर्म में लिखेंगे, डी किस लाइन में, किस अल्फाबेट में, एफ डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, अंडरस्टूड चिल्ड्रन, इस तरीके से आप एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे चिल्ड्रन, डिटरमाइनिंग टाइमिंग। तब तक के लिए बाय बाय, और
read the paras, whatever I taught you in this period. Okay, read the para read out करोगे. How many longitude lines are there children? 360. Okay, and main which line it is? 0 degree line which divided earth into two parts. Okay, 180 degree east and 180 degree west. Okay, this part is eastern hemisphere and this part is western hemisphere. It is represent. And then I teach you about the location of a place. Okay, लोकेशन समझ में आएगा. साउथ और वेस्ट का याद रखोगे, बहुत इजी है. एक बार और वीडियो देखो, यू जस्ट क्लियर इन योर माइंड, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा. ओके, तब तक के लिए बाय बाय. डिटरमाइनिंग टाइम से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पीरियड. बाय बाय.